Hello, ladies and gentlemen. You're watching the case law discussion series with me, Avinash Paswan. Today, in this video, we are going to discuss a very important case which has changed the way FIR is registered, the way FIR used to be treated by the police officers, by the erring police officers, I must say. And this case, which is titled as the Lalita Kumari versus State of UP. The Lalita Kumari versus State of Uttar Pradesh. This particular case has given certain rights to the informant, has given certain rights to any person who really knows, who really has the information of happening or occurrence of a cognizable case, and who goes to the police officer and says कि sir please register my case. और erring police officers कहते हैं कि नहीं, आप जाइए, मैं मामले की छानबीन करना चाहूँगा एंड आफ्टर दैट मैं देखता हूँ केस रजिस्टर करना है कि नहीं. तो मैं आपको बता दूँ कि इस केस ने, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ने हर इस तरीके के पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर एक पाबंदी लगा दी है कि आपको किसी भी हाल में अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसका मामला दर्ज करना ही है. तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है. इन द केस ऑफ ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, Supreme Court has underlaid certain guidelines which are mandatorily to be followed by the police officers while registering an FIR. सबसे पहली बात तो कि अगर आप एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, in that case the police officer mandatorily need to register an FIR under section 154 of the CR.P.C. That has been held very clearly by the Supreme Court, Honorable Supreme Court in this particular case. अगर कोई इंफॉर्मेंट एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन लेके पुलिस ऑफिसर के पास आता है तो वो पुलिस ऑफिसर किसी भी हाल में ये नहीं कह सकता है कि आप जाइए मैं देखता हूं, आप जाइए मैं आके देखता हूं. नहीं, this is not the discretion of the police officer, and the police officer mandatorily has to register that case, mandatorily has to register that information, and उसके बाद police officer has immediately take the action, has to immediately start the investigation, right? Now एक information आती है पुलिस ऑफिसर के पास कि there has been a case which has, which is mainly a cognizable case, but there is doubt in the minds of the police officer, in the mind of the police officer, that there might be chance that कि नहीं, ये एक कॉग्निजेबल केस नहीं है. तो ठीक है, आप असर्टन करने के लिए यू कैन कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, बट ओनली जस्ट टू असर्टन, just to make yourself believe that there has been occurrence of the police, a cognizable offense. And that action also, preliminary inquiry भी अगर आप कर रहे हैं तो आप immediately उसको start करिए. And police and the Supreme Court has clearly mentioned, clearly underlaid that the inquiry must be completed within 7 days. देखिए, जब आप रजिस्टर करवाने जाते हैं इंफॉर्मेशन को तो पुलिस ऑफिसर हैज पुलिस स्टेशन में एक जनरल डायरी होती है जिसमें मामला को दर्ज किया जाता है, जिसमें हर एक केस को दर्ज किया जाता है. एंड दैट डायरी इज मेंटेन्ड एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो जब आप एक केस लेकर जाते हैं, दैट केस इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, और उसमें अगर इंफॉर्मेशन से साफ साफ पता चलता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस ऑफिसर को मैंडेटली वो रजिस्टर करना पड़ता है FIR. अगर इंफॉर्मेशन से ये क्लियर नहीं होता है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, तो उस केस में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी कह सकते हैं उसको, प्री इंक्वायरी कंडक्ट की जा सकती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, बट दैट हैज टू मेंशन्ड इन दी जर्नल डायरी कि मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा है. द पुलिस ऑफिसर विल राइट that I am not satisfied that there has been a occurrence of the cognizable offense, and to make myself satisfied that there has been a occurrence of the cognizable offense, I am going to conduct pre-inquiry. और वो जनरल डायरी में ये चीजें मेंशन करेंगे. एंड सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली लेड that pre-inquiry shall be completed within 7 days. एंड अगर 7 दिन से ज्यादा डिले हो जाता है प्री इंक्वायरी को कंडक्ट करने के लिए तो उस केस में क्या होगा कि रीजन हैज टू बी मेंशन इन द जनरल डायरी, राइट. आप ऐसे भी कोई हवा में कोई काम नहीं कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेंट को ये नहीं बोल सकते हैं. अच्छा, एक बात और है, अगर वो प्री इंक्वायरी करने जाते हैं और प्री इंक्वायरी में ये पता चलता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है,
उस केस में FIR 154 में रजिस्टर करना मतलब जरूरी नहीं समझते हैं पुलिस ऑफिसर। तो ये बात भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली लेड डाउन, हैज गिवन राइट टू द इंफॉर्मेंट दैट दिस हैज टू बी इंफॉर्म्ड immediately to the informant ki by the information that you have given to the police officer, there is no case being made of the cognizable offense and therefore we are not register your FIR, right? तो ये तो है कि उसके बाद एक और बात आ जाती है कि अगर आप कोई भी ऑफिसर जो कि ये समझ लेता है कि देयर हैज बीन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस विच हैज बीन मेड आउट और स्टिल ही इज नॉट रजिस्टरिंग द FIR, तो इस तरीके के एरिंग ऑफिसर्स के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली लेड डाउन दैट द डिसिप्लिनरी एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट सच एरिंग ऑफिसर्स, राइट? सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, आई एम सॉरी बार बार मैं सुप्रीम कोर्ट बोल दे रहा हूं, इट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली लेट डाउन दैट, मतलब जहां पे मतलब सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन लिस्ट ऑफ फ्यू केसेस वेयर इन यू कैन कंडक्ट प्री इंक्वायरी. दीज केसेस कैन बी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, करप्शन चार्जेस हैं, ठीक है, करप्शन चार्जेस के केस में, मैट्रिमोनियल के केस में, या फिर प्रॉपर्टी केसेस हैं, इस तरीके के केसेस में यू कैन कंडक्ट प्री इंक्वायरी. बट जहां पे भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है, क्लियरली इट हैज बीन लेड डाउन इन दिस वेरी लीडिंग केस ऑफ ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी दैट द पुलिस ऑफिसर हैज टू and mandatorily and he is duty bound to register the FIR of the case and start the investigation of the case as provided by the criminal procedure code, right? And if the police officer is failing willfully to do his duty, a legal action can be started against such erring police officers, right? मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे डिस्कशन में जो नोट डाउन करने वाली ये है कि अगर कॉग्निजेबल केस है तो आपको रजिस्टर करना ही है. अगर आपको लगता है कि कॉग्निजेबल केस नहीं है तो प्री इंक्वायरी करिए, लेकिन प्री इंक्वायरी सिर्फ और सिर्फ इसलिए होनी चाहिए कि पता चल पाए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नहीं है. और कॉग्निजेबल ऑफेंस यहां से पता चलता है तो अगेन फिर आपको उसको रजिस्टर करना है एंड यू हैव टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन. अच्छा, जब आप प्री इंक्वायरी करने जाते हैं तो आपको you have to mention that in general diary which is kept in the police station as prescribed by the general or the special rule from the state government कि आपको उस डायरी में मेंशन करना है कि you are going to conduct a pre inquiry of this particular case, right? अगर और ये जो प्री इंक्वायरी है वो आप कोशिश करिए कि 7 days में कंप्लीट हो जाए. इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट दिस इन 7 days then again mention the reason of delay in that general diary. Now after coming to know that there has been a case of cognizable offense, the police officer shall register the case. If he is not doing so, if he is erring at his part, in that case such erring police officers shall be dealt with very strictly under the law, right? So इस तरीके से this particular case has changed the very way of how the police officer used to treat the informants. कोई भी informant जाता था तो उसको किस तरीके से मतलब without listening to him, उसको बिना सुने हुए उसको पुलिस ऑफिसर से भगा दिया जाता. लिटरली ऐसा होता था. दिस पर्टिकुलर केस, अगर आप इस केस के फैक्ट्स को जाने तो ऐसा हुआ था कि एक पिता होते हैं जो अपने एक माइनर गर्ल चाइल्ड के लॉस्ट हो जाने पे इंफॉर्मेशन देने जाते हैं, तो उनके पहले तो इंफॉर्मेशन नहीं रजिस्टर की जाती है. उसके बाद वो एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इंफॉर्मेशन देते हैं एज पर सेक्शन 154(3) ऑफ CRPC. उसके बाद भी रजिस्टर होने के बाद भी इंफॉर्मेशन के ऊपर काम नहीं होता है. तो इसलिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. एंड दिस केस हैज टू बी रिलेटेड विद सेक्शन 154 ऑफ CRPC, ठीक है. तो इस तरीके से हमने इसको ब्रीफली डिस्कस किया. वैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही इसके फैक्ट्स, इसके आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है.
तो हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि क्या क्या गाइडलाइंस इसमें लेट डाउन हुई थी, राइट। होप आई माइट मेड माई सेल्फ क्लियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि कंटेंट ऐसा है कि इसको औरों तक पहुंचाना चाहिए तो आप इसको शेयर कर दीजिए। एंड इफ़ यू think that this channel is reliable, then kindly subscribe to this channel, and I make sure that I will keep on making similar videos, or I will keep on improving myself also. I promise you to improve myself, and और इससे बेहतर मतलब तरीके से I'll try to put before you the knowledge that I have, and उसको मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच। Have a good day. Have a healthy life.